Hello, welcome all of you in today's discussion Accounting and Introduction. This is a part of BCom second semester syllabus Financial Accounting in Unit First Accounting, Basic of Accounting, Accounting Introduction. I am Dr. Vikas Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Government PG College, Obra, Sonbhadra, Uttar Pradesh. First, we take into considering accounting process. In accounting, while accounting, what steps needed for starting of accounting? The first step is transaction and event. First, we identify what is the transaction and event. Transaction means any purchase or sell in business, and event is the results of any transaction. For example, if we purchase goods for business, it is a transaction. Sold goods, expenses, income, these are the transaction of business. Event, if we purchase a building, this is a transaction, but at the end of accounting period, balance of building is called event. Means result of all the transaction is called event. In accounting process, first we identify transaction and event for business. After that, measurement of all the transaction identify for the purpose of recording. First we measurement all the transaction and event. It is an important process of accounting because if any transaction and event not measurement in the term of money, it will not be recorded in the books of account, because all the quantitative transaction recorded in the books of account, qualitative transaction not recorded in the books of account. It is also a limitation of accounting. Any information or transaction very useful not recorded in the books of account if it is not converted in the term of money. Firstly, all the transaction and event identify, then converted into monetary term, and after that recording. Before recording, we identify all the transaction and event and converted it into in the terms of money, then recording. Recording in primary books, that is called journal. After journalizing all the transaction of event, we classify all the recorded transaction. Classification means transfer to ledger. After classification, summarizing the transaction. Summarizing means balancing of all the ledger and prepare trial balance and balance sheet. After preparation of balance sheet or final account or summarizing of transaction, next accounting process is analysis and interpretation. Analysis and interpretation. Accounting process start with in the books of account, that is recording. After recording, classification. After classification, summarizing. After summarizing, analysis and interpretation. Analysis means key data of final account or balance sheet, trading, profit and loss, analyze in such a manner that we abstract useful information for user of accounting, that is for owners, creditors, bankers, investor, for these point of view. After interpretation, all the information communicating to accounting end users. This is the process of accounting.
In recording, process of journalizing the event and transaction in the books of accounting, or there are two type of journalizing. First, if a business is very small, we prepare journal book, but if a business is large, we prepare cash book and other subsidiary books like purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, and journal proper. Classification means ledger, and summarizing means final account. Final account include trading PL and balance sheet. Analysis and interpretation, there are formally important two types of analysis, horizontal and vertical analysis. And recording is also we perform either or journal or books. Books, and after books we prepare ledger and then final account. Means recording is the process of two-way, either we perform journal or books. If a business is very small, we perform journal, ledger, final account, and if the business is large, business transaction is large number, then we perform account, maintain accounting books, ledger, then final account. And after final account, analysis, interpretation and communicating to information for others. सर ये हटेगा क्या स्क्रीन पे से? यस, थैंक यू सर. In recording, journal or books. Earlier we said कि अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है तो आप अकाउंटिंग बुक्स में जर्नल मेंटेन करेंगे, और बिजनेस आपका बड़ा है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में है, तो आप अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर करेंगे, और जर्नल से भी आप लेजर प्रिपेयर करते हैं और बुक से भी आप लेजर प्रिपेयर करेंगे. रिकॉर्डिंग के बाद सेकंड जो स्टेप है आपका क्लासिफिकेशन का, वो लेजर होगा, और लेजर के बाद आप फाइनल अकाउंट पे आएंगे, और बीच का एक स्टेप ट्रायल बैलेंस है जो आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, कंपल्सरी नहीं. अब रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस बिजनेस का है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही बिजनेसमैन के 3-4 बिजनेस हैं और वेरियस ट्रांजैक्शन उनका है, तो जिस बिजनेस कंसर्न के आप अकाउंटिंग मेंटेन करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उस बिजनेस के हैं या नहीं, और फिर आप आइडेंटिफाई करने के बाद मेजरमेंट करेंगे, और फिर रिकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप है जो आप अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे. और रिकॉर्डिंग के लिए आपको सोर्स डॉक्यूमेंट की बेस होना चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट आइडेंटिफाई मेजरमेंट के बाद आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग का सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. और ये सोर्स डॉक्यूमेंट के वाउचर्स आपके पास, वाउचर्स मींस कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रूफ है कि जो आप अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसके सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स आपके पास अवेलेबल हो, उसके बाद ही आप रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक्स में करेंगे. विदाउट वाउचर आप कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अब सोर्स डॉक्यूमेंट में कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन इवेंट किया है उसके सोर्स डॉक्यूमेंट में पहला है कैश मेमो. कैश मेमो क्या होता कि जब भी आप कोई कैश परचेज या कैश सेल्स, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको उसकी एक रसीद कह सकते हैं, आपकी एक कैश मेमो के रूप में मिलती है. वो सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप रिकॉर्डिंग करेंगे. नेक्स्ट, इनवॉइस और बिल. इनवॉइस और बिल मींस कि जब आप कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक इनवॉइस और बिल आपको मिलता है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए. जैसे आप लोग देखेंगे अगर कि दुकान से अगर कोई आप सामान खरीदते हैं
तो वो आपको एक रसीद देता। अगर आप नगद सामान खरीदते तो वो आपको कैश मेमो देगा। अगर आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो इनवॉइस और बिल बनता, वो आपको मिलेगा। मींस सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके पास या तो कैश मेमो या इनवॉइस और बिल होना चाहिए। उसके बाद रिसिप्ट, अगर आप किसी को अमाउंट रिसीव करते तो वो रिसिप्ट आपको देगा, या चेक। चेक भी पेमेंट करने का एक मेथड है बैंकिंग सिस्टम में। अगर आप किसी को चेक इशू करते, चेक से पेमेंट किए हैं, तो वो भी सोर्स डॉक्यूमेंट आपके हैं पेमेंट के लिए। पे इन स्लिप, आप बैंकिंग सिस्टम में जाएं, अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कोई भी अमाउंट अगर आप डिपॉजिट कराते हैं तो आपने देखा होगा कि वो सॉरी दो पार्ट में होता, और आप डिटेल दोनों पार्ट में भर के बैंकर्स को देते हैं, और वो एक पार्ट थोड़ा सा परफोरेटेड रहता है, वो कट करके आपको वापस करता है मुहर लगा के, तो दैट इज कॉल्ड पे इन स्लिप। ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जब आप क्रेडिट परचेज किया हुआ सामान रिटर्न करते हैं या क्रेडिट सेल किया हुआ सामान आपके पास रिटर्न वापस आता, तो उस केस में सोर्स डॉक्यूमेंट डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होता है। और उसके बाद ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए रिकॉर्डिंग से पहले। और वाउचर्स की अगर हम बात करें तो कैश वाउचर, जो भी कैश ट्रांजेक्शन के लिए, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर होता है। मींस कि जब आप पेमेंट कोई करते हैं तो क्रेडिट वाउचर, और जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो डेबिट वाउचर ये। और ट्रांसफर वाउचर, जब नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वहां पे ट्रांसफर वाउचर बनाए जाते हैं। और रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके पास कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, चेक, पे इन स्लिप और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सब में से अगर कोई एक सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तभी आप अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद उस सारे सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर्स अवेलेबल होने चाहिए, और जब आपके पास वाउचर अवेलेबल होगा, हो जाएगा, तो उसी के बाद आपकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक में होगी। बिकॉज जब भी आपकी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और फिर अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग होगी, तो जब भी ऑडिटर आएगा तो जो भी बुक में आपके रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन या इवेंट है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। और वो ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो भी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्डिंग की गई है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट यानी वाउचर या रसीद या सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। Source document of recording. We record transaction in the books of account after identifying and measurement of such transaction. सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते वो आइडेंटिफाई और मेजरमेंट के बाद होता। Moreover, we record financial transaction by verifiable objective evidence principle. Verifiable objective evidence principle means कि जो भी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड हुआ है उसका एविडेंस, प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि अगर आपने गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ये अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड किया है तो मोहन से जो आपने गुड्स परचेज किया है उसका एविडेंस या सपोर्टिंग पेपर आपके पास होना चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड होगा। डॉक्यूमेंट विच सपोर्टेड द ट्रांजेक्शन फॉर रिकॉर्डिंग आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी होता है ट्रांजैक्शन का उसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट आर प्रूफ ऑफ द ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका प्रूफ होता सोर्स डॉक्यूमेंट कि कैश मेमो, बिल ऑफ इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, पे इन स्लिप, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट जैसा कि डिस्कशन हुआ अभी। सोर्स डॉक्यूमेंट टेल अबाउट डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, that is parties involved, the date and the amount. सोर्स डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं वो क्या बताते हैं कि ट्रांजैक्शन किस पार्टी से हुआ, किस डेट को हुआ और कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ। ये सोर्स डॉक्यूमेंट में सारी चीजें क्लियर रहती हैं। नेचर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट आर रिटन प्रूफ, हेल्प इन ऑडिटिंग पर्पस और लीगल एविडेंस।
जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं ये एक रिटन प्रूफ है और ऑडिटर के लिए भी हेल्पफुल होता और लीगल एविडेंस में भी इसका यूज हम करते हैं। कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश परचेज एंड कैश सेल्स। जब भी आप कैश परचेज कैश सेल करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कैश मेमो होता। डिटेल रिलेटेड टू कैश परचेज एंड कैश सेल्स रिटन ऑन कैश मेमो, दैट इज क्वांटिटी, रेट एंड टोटल। कैश मेमो में ये सारी डिटेल आपको अवेलेबल होती है। बिल और इनवॉइस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स, कि अगर आप क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल करते तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिल ऑफ इनवॉइस है। इनवॉइस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स, सेलर गिव टू इनवॉइस टू परचेजर एंड परचेजर यूज द टर्म बिल व्हेन ही रिसीव दिस। And detail related to credit purchase and credit sales written, that is name of party, quantity, rate, total amount of sale, these are included in bill of invoice. Receipts, documentary evidence of cash received from debtors, and receipt contain detail related to name of customer, debtors, quantity, rate, total amount. I think quantity is not available in receipts. Check, documentary evidence of bank transaction. जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं बाया बैंक चेक या चेक आपको रिसीव भी होता है तो चेक एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है बैंकिंग ट्रांजेक्शन का। पे इन स्लिप ऑल्सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन। जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं चेक को या कैश डिपॉजिट करते हैं तो पे इन स्लिप आपको वहां से काउंटर साइन करके क्लर्क या कैशियर जो भी अथॉरिटी हो उससे आपको रिसीव होता। डेबिट नोट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ परचेज रिटर्न। जब भी आप परचेज रिटर्न करते हैं तो क्रेडिटर्स का अमाउंट डेबिट किया जाता है डेबिट नोट से, और डेबिट नोट शोज सप्लायर्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कि सप्लायर या क्रेडिटर्स का जो अकाउंट होगा उसको डेबिट करेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट क्रेडिट नोट होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट शोज कस्टमर्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। क्रेडिट नोट कस्टमर या डेटर्स जिनका बैलेंस डेबिट होता है जब वो हमें गुड्स रिटर्न करते हैं तो हम उनका अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, और डेबिट अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे तो उनका बैलेंस कम हो जाता है। एंड वाउचर्स, transaction is not recorded directly into the journal and ledger and subsidiary books for source document, but firstly these transaction debited or credited in voucher। सबसे पहले हम जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको वाउचर पे डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। वाउचर इज एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक एविडेंस होता है कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, उसको हम पहले वाउचर पे डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं फिर रिकॉर्ड करते हैं। पर्पस ऑफ वाउचर, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में डिफरेंस क्या होता? सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं ये कंटेन ऑल द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट सारे ट्रांजेक्शन का डिटेल आपके पास होता है, और वाउचर स्पेसिफाई दैट विच अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। वाउचर आपको ये बताता कि कौन सा अकाउंट हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। वाउचर्स, वाउचर ही प्रीपेड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। सारे ट्रांजेक्शन के लिए हम वाउचर बनाते हैं। वाउचर आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर। सारे वाउचर नंबर पे सीरियल नंबर होता है। वाउचर टेल्स अबाउट द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। वाउचर हमें ये बताता कि कौन सा अकाउंट हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर उस पे साइन होती है स्टैम्प बाय ऑथराइज्ड पर्सन। जो भी अकाउंटेंट होगा वहां उसमें ऑथराइज पर्सन जो होगा अकाउंट्स का हेड उसकी वाउचर्स पे साइन और स्टैम्प्ड होता है। इंटरेस्ट फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन वाउचर विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से वाउचर पे पहले एंट्री रिकॉर्ड होती है। वाउचर आज प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और ये फर्म टू फर्म वेरी होती रहती कि अलग अलग फर्म में जैसी नीड हो
उस हिसाब से वाउचर हम मेंटेन करते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। थैंक यू वन एंड ऑल।